یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے۔ خبرنامے کے ساتھ ہم حاضر۔ پہلے اس وقت کی اہم خبریں۔ ملک کے 14ویں نائب صدر کے انتخاب کے لیے آج ہوئی پولنگ۔ نیتی آیوگ کی گورننگ کونسل کی 7ویں میٹنگ کل، وزیر اعظم کریں گے صدارت۔ جموں و کشمیر سے متعلق اویسی کے بیان پر بھارت نے جتایا اعتراض، اور ہر گھر ترنگا مہم کو لے کر پورے جموں و کشمیر میں لوگ، خاص طور سے اسکولی بچے، پرجوش۔ خبروں کی تفصیل سے پہلے یہ پیغام۔ چونکہ جموں کشمیر میں کووڈ کیسوں میں ایک بار پھر اضافے کا رجحان دیکھا جا رہا ہے، ایسے میں سامعین سے اپیل ہے کہ وہ کووڈ مناسب طرز عمل اور احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، خاص طور سے ماسک کا استعمال کریں اور بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر سماجی فاصلہ بنائے رکھیں۔ اس کے علاوہ جن لوگوں نے ابھی تک کووڈ مخالف ٹیکہ نہیں لگوایا ہے وہ یہ ٹیکہ جلد سے جلد لگوائیں۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ملک کے 14ویں نائب صدر جمہوریہ کے انتخاب کے لیے آج پولنگ ہوئی۔ پولنگ آج صبح 10 بجے شروع ہو کر شام 5 بجے ختم ہو گئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزراء امت شاہ اور راجناتھ سنگھ ان شخصیتوں میں شامل ہیں جنہوں نے نائب صدر جمہوریہ کے انتخاب کے لیے پہلے ووٹ ڈالے۔ جگدیپ دھنکر این ڈی اے کے امیدوار ہیں، جبکہ مارگریٹ ایلوا اپوزیشن کی امیدوار ہیں۔ ووٹوں کی گنتی آج ہی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے ارکان پر مشتمل الیکٹورل کالج کے ارکان نائب صدر کا انتخاب کرتے ہیں، اور اس کے لیے 788 ارکان پارلیمنٹ ووٹ دینے کے مجاز تھے۔ ان میں لوک سبھا کے 543 منتخب ارکان، راجیہ سبھا کے 233 منتخب ارکان اور راجیہ سبھا کے ہی 12 نامزد ارکان شامل ہیں۔ موجودہ نائب صدر ایم وینکیا نائیڈو کے عہدے کی مدت اس مہینے کی 10 تاریخ کو ختم ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل نئی دلی میں راشٹرپتی بھون کلچرل سینٹر میں نیتی آیوگ کی گورننگ کونسل کی 7ویں میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ اس میٹنگ سے مرکز اور ریاستوں و مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے درمیان اشتراک، تعاون و تال میل کے ایک نئے دور کی راہ ہموار ہوگی۔ میٹنگ کے ایجنڈے میں فصلوں میں تنوع پیدا کرنا اور تلہن، دالوں اور زرعی سیکٹروں میں خود کفالت حاصل کرنا اور قومی تعلیمی پالیسی، شہری حکمرانی کے نفاذ کے موضوع شامل ہیں۔ گورننگ کونسل میٹنگ میں ان تمام شعبوں کے لیے نقش راہ کو حتمی شکل دی جائے گی اور ایک نتیجہ خیز حکمت عملی تیار کی جائے گی۔ کووڈ-19 وبا کے بعد ملک کے امرت کال میں داخل ہونے اور اگلے برس بھارت کے ذریعے G20 پریزیڈنسی اور چوٹی کانفرنس کی میزبانی کرنے کے تناظر میں یہ میٹنگ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ میٹنگ میں بھارت کے لیے وفاقی نظام کے لیے پریزیڈنسی کی اہمیت پر بھی زور دیا جائے گا اور G20 پلیٹ فارم پر اپنی ترقی کے لیے ریاستیں جو رول ادا کر سکتی ہیں اس کو بھی اجاگر کیا جائے گا۔ وزارت خارجہ نے آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن OIC کی جانب سے جموں و کشمیر کے بارے میں دیے گئے بیان پر اعتراض جتایا ہے۔ وزارت کے ترجمان رندم باگچی نے ایک بیان میں کہا کہ جموں و کشمیر بھارت کا ایک ناقابل تنسیق حصہ رہا ہے اور آگے بھی رہے گا۔ ترجمان نے مزید کہا کہ 3 برس قبل جموں و کشمیر میں جو تبدیلیاں لائی گئیں، آج سماجی و اقتصادی طور پر اس کا ثمرہ سامنے آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تاہم OIC متواتر طور پر اس طرح کی بیان بازی کرتا رہتا ہے۔ جموں و کشمیر کے ہر ضلع میں لوگ، خاص طور سے اسکولی بچے، ہر گھر ترنگا مہم کا حصہ بننے کے لیے پورے جوش و جذبے کے ساتھ ریلیوں میں حصہ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آزادی کے امرت مہوتسو تقریبات کے ایک حصے کے طور پر اس مہم کا مقصد لوگوں کو اپنے گھر ترنگا لینے کی طرف مائل کرنا ہے تاکہ وہ بھارت کے 75ویں یوم آزادی موقع پر 13 سے 15 اگست تک قومی پرچم لہرائیں۔ اس قدم کا مقصد یہ بھی ہے کہ عوام میں حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرنے کے علاوہ انہیں قومی پرچم کے بارے میں جانکاری دی جا سکے۔ ایک سرکاری پریس ریلیز کے مطابق کٹھوا سے کپواڑہ تک لوگ اس مہم میں حصہ لینے کے لیے پرجوش ہیں۔ جیسا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے گھروں پر ترنگا لہرانے کے علاوہ اپنے سبھی سوشل میڈیا کھاتوں پر بھی قومی پرچم کی تصویر چسپاں کر کے وطن پرست ہونے کے اپنے جذبے کا اظہار کریں۔
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी सीनियर अफसरों की एक मीटिंग में जम्मू और कश्मीर में हर घर तिरंगा मुहिम को अमली जामा पहनाने की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मुजाहिदीन आजादी के कुंभों और घरों की निशानदेही करने की अफसरों को हिदायत दी ताकि पुलिस बैंड ऐसे घरों में हुब्बुल वतनी पर मुबनी धुएं बजाने के अलावा कुछ मखसूस प्रोग्राम मुनक्किद करे। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल लाल चौक से द ग्रेट इंडिया रन को झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन में शामिल नौजवान श्रीनगर से 800 किलोमीटर मसाफत तय करके अमन और कौमी यकजहती के पैगाम के साथ नई दिल्ली पहुंचेंगे। ये मैराथन भी आजादी के अमृत महोत्सव तकरीबात की एक कड़ी के तहत हर घर तिरंगा मुहिम का एक हिस्सा है। आजादी के 75 बरस मुकम्मल होने की मुनासिबत से इस मौके पर 75 तिरंगे भी सजाए गए थे। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने तमाम यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों से कहा है कि वो 14 अगस्त को मुल्क की तकसीम की होलनाकी के यादगार के दिन के तौर पर मनाएं। यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों से कहा गया है कि वो 1947 में मुल्क की तकसीम के दौरान लाखों भारतीयों की तकलीफों और कुर्बानियों को याद करने के लिए प्रोग्रामों और सेमिनारों का इनेकाद करें। यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने कहा कि तकसीम की होलनाकी के यादगारी दिन में बड़ी तादाद में हिस्सा लेने के लिए तलबा, अमले और फैकल्टी मेंबरों की हौसला अफजाई किया जाना निहायत अहमियत का हामिल है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने पिछले साल ऐलान किया था कि मुल्क की तकसीम के दौरान लोगों की जिद्दोजहद और कुर्बानियों की याद में 14 अगस्त को तकसीम की होलनाकी के यादगारी दिन के तौर पर मनाया जाएगा। श्री अमरनाथ जी यात्रा के चलते आज शाम 6 बजे तक मजीद 777 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी। इसके साथ ही शिवलिंगम के दर्शन करने वाले यात्रियों की मजमूई तादाद 3,02,982 तक पहुंच गई है। आज जम्मू से वादी की तरफ यात्रियों का कोई काफिला नहीं था। गौरतलब है कि मौसम में तब्दीली के साथ ही अब श्री अमरनाथ जी यात्रियों की तादाद में भी लगातार कमी दर्ज की जा रही है। मुहर्रमुल हराम के मुकद्दस अयाम के पेश नज़र वादी खासतौर से शिया आबादी वाले इलाकों में आज़ादारी के जुलूसों और हुसैनी मजालिस का इनेकाद लगातार जारी है। श्रीनगर के लाल चौक में आज गमख्वार नामी तंजीम ने पानी की तकसीमकारी का एक कैंप मुनक्किद किया। गौरतलब है कि सन 61 हिजरी में यौम आशुरा से पहले 7 मुहर्रम को नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले खाना के लिए दुश्मनों ने पानी बंद किया था। इस दौरान आज कई दीगर मकामात पर हुसैनी मजालिस का इनेकाद हुआ, जिस दौरान शुहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया गया। जम्मू कश्मीर से आज कोरोना वायरस के 796 नए मरीजों की निशानदेही हुई है। इनमें से 136 जम्मू डिवीजन और 660 का ताल्लुक सूबे कश्मीर से है। आज सबसे ज्यादा 219 मामलात की तस्दीक श्रीनगर जिले से हुई है। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक ताहम आज मजीद 668 मुतासरीन सेहतियाब हो गए। अब यूटी में सरगर्म कोविड मामलात की तादाद बढ़कर 5261 हो गई है। कौमी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक मुल्क में कोविड से बचाव के 2,05,92,00,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड के 19,406 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 19,928 मरीज सेहतियाब भी हुए। मुल्क में सरदस्त सेहतियाबी की शरह 98.50% है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ख्वातीन विंग की सदर शमीम फिरदौस ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के अवाम हमेशा से ही अमन के मुतलाशी, भाईचारे और सभी खित्तों की यकसां तरक्की के हामी रहे हैं। वो आज रामबन में पार्टी की ख्वातीन विंग के एक रोजा कन्वेंशन से खिताब कर रही थीं। उन्होंने मरकज को मुखातिब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम की राहत रसानी के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जाने चाहिए। पीडीएफ के सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन ने बडगाम जिले में मशहूर दूध पथरी, तोस मैदान और यूसमर्ग जैसी सयाहती मकामात पर जरूरी बुनियादी ढांचे की अदम दस्तियाबी पर बरहमी का इजहार करते हुए इन तीनों सयाहती मकामात की डेवलपमेंट अथॉरिटियों की कारकर्दगी पर सवाल उठाया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि ये तीनों सयाहती मकामात शहर श्रीनगर और बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के नजदीक होने के बावजूद भी हुकूमत की अदम तवज्जो की शिकार हैं,
लिहाजा सरकार को चाहिए कि वो इन मकामात की सैर करने के ख्वाहिशमंद सैलानियों के लिए वहां जरूरी बुनियादी ढांचा और बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाएं। महकमा सियाहत, महकमा जंगलात और फौज के बाहमी इश्तराक से जिला कुपवाड़ा में आज से 2 रोजा बंगस मेला शुरू हो गया, जो कल दिन भर जारी रहेगा। इस फेस्टिवल के दौरान कैंपिंग, ट्रैकिंग, एंगलिंग जैसी एडवेंचर सरगर्मियों के साथ साथ कुछ कल्चरल और तफरीही प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। इस साल मेले में पहली बार सैलानियों के लिए हॉट एयर बैलून दस्तयाब रखा गया है। मुल्क में 1.5 लाख आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस मराकज के कयाम का हदफ इस साल दिसंबर तक पूरा किया जाएगा। इस बात की जानकारी सेहत के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में राइट टू हेल्थ बिल 2021 पर बहस के दौरान दी। उन्होंने कहा कि 1.5 लाख मराकज के निशाने में से इस वक्त 1,22,000 मराकज पहले ही कामकाज कर रहे हैं। वजीर सेहत ने जानकारी दी कि इन हेल्थ एंड वेलनेस मराकज में 3 तरह के कैंसरों की तशखीस के अलावा 13 गैर लागदार बीमारियों की जांच हुआ करेगी। डॉक्टर मांडविया ने साथ ही अवाम के लिए बेहतर और काबिल रसाई तिब्बी निगहदाश्त की सहूलियात के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की खातिर सरकारी इकदाम का भी खुलासा किया। और अब चंद मुख्तसर खबरें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जज जस्टिस मोक्षा खजूरिया काजमी ने आज जिला कोर्ट कम्प्लेक्स गांधरबल का दौरा करके वहां अदलिया के कामकाज के अलावा जिले की अदालतों में बुनियादी ढांचे की दस्तयाबी का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर शुपियां सचिन कुमार ने आज शुपियां को बिजबेहरा से मिलाने वाले रोड पर काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने मुतालिकीन को हिदायत दी कि वो इस प्रोजेक्ट को अवाम के मफाद में जल्द से जल्द मुकम्मल करें। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खानसाब बडगाम में आज आजादी के अमृत महोत्सव तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मौजू से एक रोजा सेमिनार मुनक्किद किया गया। इस मौके पर मुतल्लिका CDPO ने इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम की अमलावरी में आंगनवाड़ी वर्करों का रोल उजागर किया। रामबन पुलिस ने जिले के गूल इलाके में 2 अगस्त की सुबह को एक पुलिस पोस्ट के नजदीक धमाका करने के वाकये में मुलव्वस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे रामबन नुमाइंदे ने पुलिस जराये का हवाला देकर खबर दी है कि इस वाकये में पुलिस पोस्ट के 2 एहलकार छर्रे लगने के नतीजे में जख्मी हो गए थे। इस धमाके की जिम्मेदारी गजनवी फोर्स नामी तंजीम ने ली थी। वाकये के बाद रामबन पुलिस ने राजौरी पुलिस की मदद से जब छानबीन की तो शक की सुइयां गूल के रहने वाले शाहदीन परिहार पर घूम रही थी, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। शाहदीन की निशानदेही पर गूल के ही रहने वाले मोहम्मद फारूक नामी एक और शख्स को भी हिरासत में लिया गया, जो मुबैना तौर पर धमाका करने की साजिश में मुलव्वस था। इम्तिहानात कराने से मुताल्लिक कौमी एजेंसी NTA ने मुतल्ला किया है कि कॉमन यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान CUET UG के आज के लिए तयशुदा इम्तिहान को इंतजामी और तकनीकी वजूहात से मुलतवी कर दिया गया है। ये इम्तिहान आज 13 रियासतों के 53 मराकज पर होना था। मुतल्लिका उम्मीदवारों को इम्तिहान के मुलतवी किए जाने के बारे में SMS और ईमेल के जरिए पहले ही मुतल्ला किया जा चुका है। NTA ने एक बयान में कहा है कि मुलतवी किया गया इम्तिहान अब 12 और 14 अगस्त के दरमियान कराया जाएगा, जिसके लिए एडमिट कार्ड वही रहेगा। NTA ने कहा कि अगर इम्तिहान के लिए दोबारा मुकर्रर की गई तारीख मुनासिब नहीं है तो उम्मीदवार datechange@nta.ac पर अपने रोल नंबर और ख्वाहिश के मुताबिक तारीख तय किए जाने से मुतालिक ईमेल कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो इम्तिहान से मुतालिक ताज़ा तरीन मालूमात के लिए NTA की वेबसाइट चेक करते रहें। और अब मौसम से मुतालिक जानकारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 19.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 24.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 14.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कारगिल में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। आप समाप्त करें तबसरा।